तो कल बजट सत्र से पहले मोदी जी ने जो कहा, आज बजट में निर्मला सीतारमण ने उसे कर दिखाया। मिडिल क्लास पर देवी लक्ष्मी की कृपा बरसी और निर्मला जी ने इसका इंतजाम किया। जो महीने में 1 लाख तक कमाता है उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज्यादा जो कमाते हैं उनको भी इनकम टैक्स में 25,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक की बचत होगी। विद्वानों की राय है कि इस बार के बजट में कंज्यूमर के लिए कई संदेश हैं और खासकर ये संदेश है कि खर्च करो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ के खर्च के साथ इकोनॉमी की बुनियाद पर बजट का फोकस अब भी कायम है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य FY26 के लिए 4.4% रखा गया है। विदेशी निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर AI तक को बजट के जरिए पुश मिलेगा। खेती किसानी को लाभकारी रखने और देश की जरूरत के हिसाब से ढालने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। कैंसर की दवाएं, लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सस्ते होंगे। कुल मिलाकर सीतारमण ने सबको खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हाइलाइट्स हैं इनकम टैक्स प्रपोजल्स। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. रिलीफ इनकम टैक्स के फ्रंट पे सब कह रहे थे कुछ होगा नहीं होगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चले। टैक्स के मोर्चे पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके हो या फिर 20 से 30% वाले स्लैब में बढ़ोतरी करके बदलाव करके हो। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सरकार ने बजट में फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है। वित्त मंत्री ने FY25 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 4.8% कर दिया है, जबकि आने वाले साल के लिए FY26 के लिए टारगेट 4.4% रखा गया है। हालांकि कैपेक्स के मोर्चे पर सरकार थोड़ी धीमी दिख रही है। इस साल के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कैपेक्स टारगेट घटा दिया गया है, जबकि अगले साल के लिए FY26 के लिए इसमें 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है।
वित्त मंत्री ने इस बार छोटे कारोबारियों को भी नवाजा है। इसमें एमएसएमईज के लिए क्रेडिट से जुड़ी योजनाएं, स्टार्टअप्स के लिए फंड और सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स शामिल हैं। The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. वित्त मंत्री ने क्लीन एनर्जी पर बड़े ऐलान किए हैं। इनमें न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। इसके तहत 2047 तक 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी और R&D को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अभी 20,000 करोड़ का आवंटन भी कर दिया गया है। सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया है। इसमें ईवी बैटरी, विंड टरबाइन, क्लीन टेक, खिलौनों पर खास फोकस रहेगा। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन का ऐलान किया गया है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा। कैंसर मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष में देश भर में 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी। 36 जरूरी दवाओं से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटेगी और बाकी पर सिर्फ 5% ड्यूटी रहेगी। और बजट में बिहार के लिए बहार आई है। इसी साल बिहार में चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि ये एक वजह रही हो कि बिहार के लिए बजट में आधा दर्जन योजनाएं सुनने को मिली हैं। इनमें एयरपोर्ट्स, IIT पटना का विस्तार, सिंचाई योजनाएं, मखाना बोर्ड और फूड प्रोसेसिंग संस्थान शामिल हैं। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों की झोली भरने वाला है और देश की तरक्की के लिए बड़ी नींव रखने वाला है। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक
विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। बजट को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है हमेशा से मिडिल क्लास को, गरीब तबके को, किसान को, युवा को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए, राहत दी जाए। ये बजट उस तरफ कितना बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है आपको? हमारा बजट और हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार का उद्देश्य चार हमारे मुख्य स्तंभों पर आधारित है। हमारा गरीब, हमारा अन्नदाता, हमारी महिला और हमारा युवा। यही चार स्तंभ भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। और ये इस साल का बजट उस सफर पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो एक ऐसा बजट बनाया है जहां कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्णता दी गई है, जहां एक तरफ 1.5 लाख करोड़ का क्रेडिट को उत्पन्न करने के लिए करीब 7 करोड़ 20 लाख किसानों के लिए, सीमांत कृषकों के लिए, और वहीं एक नया दाल तिलहन का मिशन, वहीं रुई कॉटन का मिशन, वहीं मखाने का मिशन, और उसी के साथ एक नया इन्वेस्टमेंट में नई तेजी इकोनॉमी के अंदर, जहां पिछले वर्ष या ये चलता हुआ वर्ष मैं बोलूं तो करीब 11 लाख करोड़ का निवेश अधोसंरचना में हो चुका है और अगले साल इसे हम बढ़ाने वाले हैं। और वहीं कई योजनाओं का 100% सैचुरेशन हम लोग हासिल करेंगे, जैसे कि हर घर नल, जहां 2028 तक 100% सैचुरेशन, मतलब हर घर में टोटी और टोटी के साथ पानी दोनों उपलब्ध होंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उसी के साथ टेक्नोलॉजी में भी महत्वपूर्णता दी गई है, जहां डीप टेक के लिए एक फंड 10,000 करोड़ रुपए का शुरुआत की गई है और वहीं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के लिए भी खोला जा रहा है। आईआईटीज के सीट्स बढ़ाई जा रही हैं और एक नया फंड ऑफ फंड्स की क्षमता की शुरुआत भी हो रही है कि पोस्ट ऑफिस को एक पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखेंगे। तो इस रिवैम्प को कैसे आप देख रहे हैं और कैसे इसको हम लोग पिछले 6-7 महीने पे काम कर रहे हैं और वित्त मंत्री जी के साथ हमारी पूरी मंत्रालय की भी मीटिंग हुई, जहां हमने प्रेजेंट किया कि इंडिया पोस्ट को परिवर्तित करना है हम लोगों को लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। विश्व भर में हमारी जितनी भी पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जापान की हो, यूके की हो, अमेरिका की हो या जर्मनी की हो, वो अब एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तीव्रता से बढ़ रही हैं, जहां एंड टू एंड सोल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग के आधार पर, ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ता के लिए जल्द से जल्द कम से कम समय में सबसे ज्यादा सुविधा हम लोग दे पाएं। तो इस बार मैंने 6 वर्टिकल्स में इंडिया पोस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, प्रोडक्ट वाइज के आधार पर और 4 हॉरिजॉन्टल के आधार पर, और एक नया सॉफ्टवेयर 2.0 भी हम लोग ला रहे हैं, जिसके आधार पर डिजिटाइजेशन बहुत तीव्र गति से होगी। डिजीपिन की व्यवस्था भी लेके आ रहे हैं ड्रेस कोड के लिए, जैसे डिजी यात्रा में लेके आया था सिविल एविएशन में, वैसे डिजीपिन हम लोग यहाँ ला रहे हैं ताकि एड्रेस का फॉर्मूला सदैव वही रहे, चाहे आप उस एड्रेस पे रह रहे हो या मैं उस एड्रेस पे रह रहा हूँ, और वो जियो कोडेड हो। ऐसे जियो पिन डालिए, अपना आप लोकेशन पहुंच बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल पूरा लोकेशन पहुंच जाएगा, पर वो आपके नाम के साथ अंकित नहीं होगा, वो अपने आप अपने, हाँ, तो अगर आप उसमें रह रहे हैं आज और आप कल मूव आउट करके मैं उसमें रह रहा हूं कल, तो वो मुझे एलोकेट हो जाएगा। तो पूरा कंप्यूटर जियो कोडेड होगा। टेलीकॉम सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी घटाने का। ये किस तरह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों की अमेंडेड भारत नेट योजना पर ध्यान आकर्षित किया है। एलोकेशन तो पहले ही हो चुका था। 1,29,000 करोड़ रुपए की योजना है, जहां हम लोग एक एक ग्राम पंचायत तक और एक एक गांव तक OFC फाइबर पहुंचाएंगे। और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक भी
OFC पहुंचाएंगे। इससे संपूर्ण भारत का डिजिटाइजेशन होगा, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और अब देखते हैं कि बाजार ने कैसे रिएक्ट किया है। आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और फाइनली बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी नीचे से सुधरकर बंद हुए। सेंसेक्स 5 पॉइंट चढ़कर 77,506 पर, निफ्टी 26 पॉइंट गिरकर 23,482 पर बंद हुआ। आज के बाजार में कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी रही। पीएससी, एनर्जी, तेल गैस शेयरों पर दबाव रहा और सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, मेटल, इंफ्रा इंडेक्स में देखने को मिली। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई को भी कदम उठाने चाहिए, ऐसा कहना है एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। साथ ही रामदेव अग्रवाल ने यह भी कहा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अब काफी अहम होगी। आरबीआई क्या करता है, जो मूड है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले उनसे ये एक समझ में आ रहा है कि इनको जो विकसित भारत है या जो लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, कम वॉट में दे विल पुश द इकोनॉमी टू 7%, 7.5% काइंड ऑफ ग्रोथ। क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आया तो बहुत कुछ लफड़ा होगा, इन द सेंस दैट टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्लियरली दे इवन एट लिटिल कॉस्ट दे विल पुश द ग्रोथ। अब उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम फिस्कल, अभी क्या मॉनेटरी के ऊपर बहुत है, जो आरबीआई से आएगा अगले बजट मीटिंग में, या जो क्रेडिट फ्लो है जो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया, 15% से घट के 10 हो गया है, वो मेरे ख्याल से अगले महीना 15 में समझ में आएगा विच वे द विंड इज ब्लोइंग। थोड़ा सा टर्न अराउंड तो था ही रूरल कंजम्पशन में, सभी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा परकअप है, और उसके ऊपर से अभी अर्बन के लिए भी थोड़ा सा बूस्टर आ गया है। तो वैसे ही होता है, मतलब बहुत ख़राब था, फिर थोड़ा अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर और बूस्टर मिलेगा। तो अभी तो ये साइकिल है ना, 2-3 साल तो चलेगा नहीं। अभी कंजम्पशन इतने दिन से पिटाई हुई है, अब थोड़ा तो इनके भी अच्छे दिन आएंगे ना। और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे से टैक्स और टीडीएस के गणित पर खास बातचीत की है लक्ष्मण रॉय ने। मिडिल क्लास को एक बड़ी उम्मीद थी और 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया। इसको लेके जब से ऐलान किया गया तब से कई सारे सवाल मेरे पास आए हैं। एक सवाल ये है कि मान लिया जाए कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं करता है, वो 12 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी है, अगर 12,25,000 हो जाएगा उसको तो पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा, तो 25,000 तो बड़ा महंगा पड़ा उसके लिए। उसके लिए हमारे मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था है। जैसे पहले भी रिबेट दिया जाता था 7 लाख में, तो ये प्रश्न उठता था, तो उसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है कि उससे ऊपर जो भी वो इनकम उसकी आएगी उतनी ही इनकम टैक्स होगी। तो वो धीरे धीरे रिबेट उसका घटता जाएगा और लगभग 12,70,000 तक, 12,70,000 तक वो खत्म हो जाएगा। तो वो कभी भी उसको जर्क नहीं लगेगा। तो मार्जिनल रिलीफ जो है उसकी व्यवस्था लॉ में ही की गई है। लॉ में की गई। तो ये 12,70,000 जो बगैर डिडक्शन वाले हैं, डिडक्शन वाले को भी इसी रेशियो में बढ़ेगा? हाँ, उससे उनसे कम नहीं मिलेगा। जो रिबेट मिल रहा है 12 लाख को, उससे कम रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें एक और सफाई आपसे चाहूँगा कि ये पूरी जो रियायत है या फिर जो टैक्स में फेरबदल है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया? नहीं, ओल्ड टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए, सिर्फ न्यू टैक्स के लिए। 20% से 30% के बीच में एक नया स्लैब जोड़ा गया है 25% का। इससे कितने लोगों को आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? और अभी जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उनके रेशियो के हिसाब से देखें तो देखिए, हमारा जो स्लैब रेट स्ट्रक्चर चेंज करने का जो मेन वो है सुधार जो लाने का, एक तो आप देखेंगे कि पुराने की स्ट्रक्चर और हमारे नई स्ट्रक्चर में एक बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी हम लाए हैं। आपका देखिए 4-4-4-4-4 उसके हिसाब से हम गए, और इधर से हम 0, 5, 10, 15, 20, 25। पहले जो उसमें था, एक तो जो स्लैब रेट में समानता नहीं थी, कहीं 2 का डिफरेंस था, कहीं 3 का डिफरेंस था, फिर कहीं 2 का डिफरेंस था। अभी ये 4-4-4-4 की सरलता की गई है। दूसरी जो उसमें भी ग्रेजुअलिज्म है, 5-10, वहाँ पे क्या था, आपका 15% से 20% से 30% जंप करता था, 25% का स्लैब नहीं था। तो इसलिए उसमें अचानक हाई एकदम से टैक्स आ जाता था, उसको हमने ग्रेजुअलिज्म किया। तो बेसिकली उसको जो हमने उसका जो जिसको युक्ति संगत बनाया है,
उस रिफॉर्म में ये 25% की भी स्लैब ऐड की गई। मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊँ, एक छोटा सा सवाल और भी रहेगा। टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है या फिर टैक्स इम्प्लीकेशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा तो ये है कि पहले हमारे बहुत सारे टीडीएस के रेट्स हैं और बहुत सारी थ्रेशोल्ड है। कहीं 5,000 की थ्रेशोल्ड में टीडीएस लगाना है, कहीं 15,000 में लगाना है। तो हमने एक तो यूनिफॉर्म शुरू कर दिया, 10, 20, 30, 50, मतलब वो। दूसरा, हमने रेट्स में रैशनलाइजेशन किया है कि टीडीएस का रेट्स कहीं 1% लग रहा है, कहीं 2% लग रहा है, कहीं ज़्यादा लग रहा है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे 25% था। तो उन सबको रैशनलाइज करते हुए हमने एक तो रेट को रैशनलाइज किया है और दूसरा स्लैब थ्रेशोल्ड को किया है, समांतर लाए हैं। उससे एक तो जो टीडीएस काटने वाले हैं, क्योंकि टीडीएस काटने वाले खाली इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होते, टीडीएस काटने वाले हम और आप भी होते हैं। कई जगह पे आपको टीडीएस काटना है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए छोटी छोटी पेमेंट के लिए हमने टीडीएस को निकाल दिया ताकि वो उसमें उनको वो बर्डन नहीं आए। तो ये इससे क्या है कि हमारा एक्चुअली यदि हम देखें तो इनिशियली हमारा टैक्स रिडक्शन कम भी होएगा, कम होगा, लेकिन वो एक सरलीकरण की ओर हम जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल इन डायरेक्ट टैक्स पे कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, वित्त मंत्री साहिबा ने, कि हम लोग न्यू टैक्स इनकम टैक्स के नए नियम लाएंगे। ये नए नियम क्या डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बातचीत वर्षों पहले हुई थी, क्या उसी तर्ज पे होगा? क्या ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देगा और कब तक लाएंगे? इनकम टैक्स बिल जो है हमारा नया आएगा, वो हमारे इनकम टैक्स 1961 का, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई हैं, जो 60 साल पुराना है, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बल्कि हो गया है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की, उसमें उसको समझने में दिक्कत है। इन सब को देखते हुए एक नया बिल लगाएगा, वो नई तरह से लिखा जाएगा, नई तरीके से लिखा गया है। जैसे आप वित्त मंत्री जी ने कहा कि लगभग आधा होगा वो जो प्रेजेंट हमारा लॉ है, प्रोविजन उसका आधा होगा, उसका लगभग आधा होगा, चैप्टर्स भी लगभग आधे होंगे, लिटिगेशन भी कम हो जाएगा। तो लिटिगेशन कम हो जाएगा और जो उसकी जो भाषा है हमने सरल की है, वो उस तरह की भाषा आपको नहीं मिलेगी, ये बड़ी डायरेक्ट और सिंपल भाषा मिलेगी। तो आप भी समझ पाएंगे। एग्जांपल दे पाएंगे आप? वो तो आप जब बिल देखेंगे आपको वो रिएक्शन का बिल मौका कब तक लागू करने की का टारगेट है? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसी लेग में सेशन के 13 तारीख से पहले बिल पेश किया जाए। और बजट पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। सरकार का जो कमिटमेंट था कैपेक्स को लेकर और एक्सपेंडिचर को लेकर, वो कायम है। उम्मीद की जा रही थी कि उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ सेक्टर्स छूट गए हैं, जैसे कि जहां पर एलोकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रेलवे, मनरेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेकर क्या विजन था इस बार एक्सपेंडिचर को लेकर? और कैपेक्स के बारे में क्या कहेंगे? कैपेक्स एक बड़ा कंजम्पशन बूस्टर के तौर पर पिछले कई सालों से देखा जा रहा था सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कैपेक्स का एक बजट मेकिंग में महत्व होता है। और आप यदि देखें पिछले 4-5 सालों में तो कैपेक्स में काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग 30% से अधिक CAGR के टर्म्स में देखें तो वृद्धि हुई है। इस साल के पहले का पुराना जो साल था 2023-24, उसमें टोटल मिला के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स था, डायरेक्ट जो कैपेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो लगभग 9.49 लाख करोड़ था। उसके बाद इस साल के प्रथम 3-4 महीने में इलेक्शन और अन्य गतिविधियों के कारण थोड़ा सा ये कैपेक्स में कमी आई। और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें भी इस बात को इंगित किया गया। और उसके बाद हालांकि काफ़ी इसमें सुधार है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और हमें अब लग रहा है कि जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट हमने संसद के सामने पेश किया है, उसमें 10.18 लाख करोड़ तक कैपेक्स पहुंच सकता है। आप ये जान के हैरान होंगे, ये पहली बार है कि केंद्र सरकार के बजट में कैपेक्स का जो फिगर है वो 10 लाख करोड़ से अधिक है। इसके अलावा केंद्र सरकार काफ़ी ग्रांट देती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करते हुए कैपेक्स का निर्माण करती है, कैपेक्स में खर्च करती है। जैसे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीजिए,
जब हम राज्य सरकार को पैसा देते हैं तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, परंतु राज्य सरकार स्तर पे उस पर एक्चुअल उससे रोड बनती है जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यदि आप उसको भी शामिल कर लें तो इस साल यदि आप देखेंगे तो 15.48 15.48 लाख करोड़ का टोटल कैपेक्स का खर्चा है, डायरेक्ट कैपेक्स और जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कैपेक्स हो रहा है वो, जो कि पिछले वर्ष जो भी इस साल का जो आ रही है उस पर लगभग 17% की ग्रोथ है। तो बजट की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर बजट की चर्चा लगातार जारी रहेगी जब तक हम आपके सामने बजट के सारे फाइन प्रिंट्स भी क्लियर नहीं कर देंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जाते जाते आपको बता दूं कि 8 बजे 7:57 पर बजट अड्डा होगा, जिसमें चर्चा होगी कि क्या बजट से मिडिल क्लास हो गया खुश। नमस्कार।